So good afternoon students. Today we will learn about the aerobic respiration. Aerobic respiration means respiration in presence of oxygen. So it occurs in plants as well as in terrestrial animals and aquatic animals. So target of respiration to generate ATP by cellular oxidation of food. That is, we have already discussed in the first part where we have read about the glycolysis. So target of respiration to generate ATP by cellular oxidation of food. And one lecture I will give you about the ATP. Aerobic respiration. So aerobic respiration means generation of ATP by the cell from glucose oxidation in presence of oxygen. So in presence of oxygen is must here. Now you see the concentration of oxygen in air. The concentration of oxygen, we know it is about 21%. That's why the rate of breathing in animals, those who are living on earth, means they are terrestrial, their rate of breathing will be low, because in the air the concentration or the amount of air is high. That's why their rate of breathing will be low. But it will be just reverse in aquatic organisms, where the dissolved oxygen, that is oxygen dissolved in water, is less. You can see oxygen present in water is too much less. That's why rate of breathing will be, you can see here, rate of breathing will be high. So in aquatic animals rate of breathing will be high because in water oxygen is in less amount, but body need more oxygen. That's why their rate of breathing will be high. Now another topic, aerobic respiration in plants. So first of all we will discuss about the aerobic respiration in case of plants. After that we will learn in animals. So aerobic respiration in plants. So plants exchange gases through stomata. We have learned these things earlier. So in case of plant, large intercellular spaces are present, and this ensures that all cells are in contact with air. That's why here there is no need of any respiratory organ like lungs. Are you getting? There is no organ for gaseous exchange. And carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here only. At night, when there is no photosynthesis, then carbon dioxide elimination is the major exchange activity that is going on. और जैसा कि हम लोग सुनते भी हैं कि रात में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बिकॉज दे आल्सो डू रेस्पिरेशन टू जनरेट एनर्जी. सो वेन एवर ए ऑर्गेनिज्म आइदर प्लांट और एनिमल will respire, they will release carbon dioxide. But in the sunlight, in the daytime, plants do photosynthesis, isn't it? Plants do photosynthesis, and by the process of photosynthesis they release oxygen. I have written here, you can see here. So aerobic respiration, definitely now we will start in animals. So in animals we have divided it into two aspects. First one is the terrestrial and second one is the aquatic. So aquatic like fish. So in case of fish, the rate of breathing will be less or more. The rate of breathing will be high because they need more oxygen, and in air limited oxygen is present. Nahi. But in case of terrestrial animals including human beings, the rate of breathing will be less in comparison to aquatic animals. Now we will start respiration in human beings. So respiration in human beings, first you see the left picture, that is the picture of the respiratory system of human beings. Here I have tried to show you the epiglottis. Epiglottis is a flap like structure. Epiglottis is a flap, it is a covering, just like a covering over the larynx, over that we called epiglottis also, over the larynx. Whenever we swallow the food, this epiglottis will cover this passage from where air is entering. So this passage will be covered by the epiglottis, so that the food particles will come in this food pipe. Food particles will go in the food pipe, right, and it will not enter in the windpipe. So now you see the trachea and this larynx.
creates voice, you know. Here voice muscles are present, and from vibration sound will produce. Now trachea, this trachea is muscular, and this trachea has cartilaginous rings made up of cartilage means चूड़ीदार पाइप लाइक स्ट्रक्चर है. यू माइट हैव सीन चूड़ीदार पाइप, जो पाइप हमेशा अपने शेप में रहता है, वो श्रिंक नहीं करता है. सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज बीइंग मेड विद द हेल्प ऑफ द कार्टिलेजिनस रिंग. ये जो कार्टिलेज के रिंग है, इस कार्टिलेज रिंग के कारण ये हो पाया है, उपलब्ध हो पाया है. और इस तरह से फिर ये लगातार एयर यहां आता रहता है और इस तरह से लंग्स में ये एयर जाएगा. नाउ आप देखिए, दिस इज द लेफ्ट लोब, जस्ट अपोजिट. हम सामने से इसको देख रहे हैं तो हमारा जो राइट होगा वो इसका लेफ्ट हो जाएगा. तो लेफ्ट लोब, लेफ्ट लंग्स में मैंने लिखा 2 लोब. सो यहां पर इस लंग्स के 2 लोब हैं और यहां पर जो राइट लंग्स है इसके 3 लोब हैं, 1 2 एंड 3, राइट. एंड हियर देखिए, आई हैव ट्राइड टू मेक वन नोच, मींस गड्ढा बनाने की मैंने कोशिश की. देखिए मैंने एक रेड लाइन से दिखाया है. एंड दैट नोच इज कॉल्ड कार्डियक नोच. कार्डियक मींस हार्ट, मींस यहां पर हार्ट प्रेजेंट होगा. यहां पर ये हार्ट का प्लेस है और यहां पे ये हार्ट सिचुएटेड होगा. दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है लिटिल बिट लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, क्योंकि लेफ्ट लंग्स की ओर थोड़ा ज्यादा डेविएटेड है. दैट्स व्हाई. So now you see this picture. So how this trachea is further branched, further divided into so many branches. So आप यहाँ पे देखिए, ट्रैकिया को मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश किया. फिर ये ट्रैकिया ये ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो गया. देखिए ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ और ब्रोंक्यूल्स फिर यहाँ एंड हो गया. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मैंने लिखा है, लेकिन ये एंड नहीं हुआ है. इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है दैट इज चेंज्ड, दैट वी हैव कॉल्ड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. इसको हमने रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कहा है क्योंकि ये पाइप कंटिन्यू है, बट इट्स नेम इज गोइंग टू बी डिफरेंट. ये पाइप लगातार यहां से लेकर यहां तक कंटिन्यू है. आप देखिए इस पूरे पिक्चर को, ये पाइप यहां से यहां तक कंटिन्यू है, बट इसका नेम बदलता जाएगा एज पर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. आर यू गेटिंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देन वी हैव कॉल्ड इट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद अब ये आगे डक्ट में बदल रहा है और ये डक्ट फिर एल्वियोलर सैक में खुल रहा है, जिसको हमने कहा एल्वियोलर सैक. आर यू गेटिंग? सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इन कैप्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एयरवेज, है ना. ये एयरवेज का ऑर्गेनाइजेशन है. क्लियर? नाउ इन दिस पिक्चर आई हैव ट्राइड टू शो यू द अरेंजमेंट ऑफ एल्वियोली इनसाइड द लंग्स. सो लंग्स के अंदर में एल्वियोली का अरेंजमेंट किस तरह से होगा मैंने वो दिखाने की कोशिश किया. तो एक लंग्स में आप देख सकते हैं इस तरह का अरेंजमेंट होगा. एंड इन ईच लंग्स मिलियंस ऑफ एल्वियोली आर प्रेजेंट. इवन 300 मिलियंस ऑफ एल्वियोली मे बी प्रेजेंट इन ईच लंग. सोच सकते हैं. और ये जो एल्वियोली है इट्स टू मच माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही थिन है, सो डैट गैसेस का जो डिफ्यूजन है, गैसियस एक्सचेंज, वो आसानी से हो सके. एंड दीज एल्वियोलीज आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज. दैट्स व्हाई मैंने रेड लाइन से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है. ब्लड कैपिलरीज को आप देख सकते हैं और जो गोल गोल स्ट्रक्चर है दे आर रिप्रेजेंटिंग द एल्वियोली. एंड द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द एल्वियोली इज द एल्वियोलस. ये एल्वियोलस सिंगुलर फॉर्म है एल्वियोली का. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. उसके बाद आगे देखिए, यहां पर इस पिक्चर को देखिए, मैंने एक एल्वियोली को लिया है और यहां पर कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है हम इसको देखने की कोशिश करेंगे. सो जो एयर अभी एल्वियोली के अंदर आया, व्हेनेवर वी हैव इनहेल्ड, तो एयर आया तो वैसे एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या था, बहुत ज्यादा था. और जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इस एल्वियोलर सैक में बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर देखिए मैंने कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज को दिखाया है. एंड दीज ब्लड कैपिलरीज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज टू मच लो, बिकॉज जो ऑक्सीजन हम लगातार ले रहे हैं इट इज कंज्यूम्ड इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म. जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी का जनरेशन हो रहा है और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल रहा है. और यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड कैपिलरी में लेवल हाई है, तो ऑक्सीजन यहाँ कम है और यहाँ पर अंदर में ऑक्सीजन ज्यादा है. तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, दिस ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. यानी ये एल्वियोलर सैक से
ब्लड कैपिलरीज की तरफ चला जाएगा, यानी एल्वियोलर सैक से निकलकर ये बाहर में देखिए स्पेस, इस इंटरसेलुलर स्पेस में आएगा और यहाँ से फिर ये इंटर कर जाएगा ब्लड कैपिलरी में। सो इट इज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन मूवमेंट फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड कैपिलरी। अब यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड कैपिलरी में ज़्यादा है और जो एयर हमने इनहेल किया वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इनहेल जो हम किया है कम है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये एरो जस्ट रिवर्स होंगे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है अभी यहाँ कम है, ठीक है। देन क्या होगा, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएंगे फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी ब्लड कैपिलरी से निकल के ये कहाँ चले जाएंगे, एल्वियोलर सैक में, और एल्वियोलर सैक से कहाँ चले जाएंगे, नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर। सो दिस इज ऑल अबाउट द गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स एल्वियोली, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, इजंट इट, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और एटीपी रिलीज होगा, एटीपी ये रिलीज कर रहा है और साथ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल के कहाँ चला जाएगा, ब्लड कैपिलरी में। और ब्लड कैपिलरी मैंने ये जो राउंड सर्किल दिखाया है, डेट इज द आरबीसी, ठीक है। ये आरबीसी में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे है तो आरबीसी के अंदर जो वाटर के साथ कंबाइन किया, कंबाइन करके ये क्या बना दिया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज H2CO3। मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्लोसरी में, आप देख सकते हैं टर्म्स में मैंने सब लिख दिया है, कार्बोटिज कार्बोनिक एसिड, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, हाल्डेन इफेक्ट क्या है, ठीक। तो अब यहाँ पे आप समझते चलिए, आप यहाँ इसको पढ़ लीजिएगा। तो H2CO3 डेट इज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो बना तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, मैंने लिखा है C एनहाइड्रेज, C फॉर कार्बोनिक, आर यू गेटिंग, C फॉर कार्बोनिक, डेट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्लियर। सो यहाँ पर ये क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड बन गया, और कार्बोनिक एसिड फर्दर फिर यहाँ पर यही वाला एंजाइम लगेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये बन जाएगा बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस प्लस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगा HB, डेट इज हेमोग्लोबिन, और ये बाइकार्बोनेट आयन इस आरबीसी से निकल के ब्लड प्लाज्मा में मूव करेगा, यानी ब्लड में आ जाएगा। ब्लड का जो वाटरी कंटेंट है, वाटर पार्ट है, पानी वाला जो पार्ट है ब्लड का, उसमें आ जाएगा और उसमें मिक्स होकर के ये ब्लड में फ्लो होगा, ठीक। अब उसके बाद ये फ्लो होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स में। लंग्स में देखिए लंग्स के चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरी है, मैं उस ब्लड कैपिलरी में जो आरबीसी, अब उस आरबीसी में आ रहा हूँ, यहाँ देखिए। अब यहाँ पर ये जो बाइकार्बोनेट है, मैं इस बाइकार्बोनेट को फिर यहाँ से लेके आ रहा हूँ, ये बाइकार्बोनेट में यहाँ लेके आ रहा हूँ, देखिए ये बाइकार्बोनेट क्या होगा, हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करके क्या होगा, क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड, और ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया, जो हेमोग्लोबिन बाइंड अप करके रखा था उससे आया, कार्बोनिक एसिड बन गया, और ये क्लोराइड आयन बाहर निकल गया आरबीसी से, दिस इज आरबीसी, ठीक है, ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, आरबीसी से बाहर निकल गया। आरबीसी से बाहर निकलने के बाद ये जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से, मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आप यहाँ देख सकते हैं, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक कर जाएगा, वाटर अंदर ही रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि गैस है, ये आरबीसी से बाहर निकलकर डिफ्यूज करके एल्वियोलर सैक में आ जाएगा, ठीक है। ये एल्वियोलर से, जैसा कि आपको मैंने इस डायग्राम में दिखाया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड कैपिलरी से निकल के एल्वियोलर सैक में आ रहा है और फिर नॉस्ट्रिल का रास्ते बाहर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एल्वियोलर सैक में आ गया और एल्वियोलर सैक से ये हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर चला जाएगा, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। अब आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड एज, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में 7% ही ब्लड में मूव करता है, और हेमोग्लोबिन के साथ HgB भी हम लिखते हैं हेमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाया, तो इस फॉर्म में ये 23% ही ब्लड में मूव करता है। रेस्ट 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बदलकर ब्लड के अंदर मूव करता है, डेट इज 70%। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Thank you very much. So please don't forget to subscribe. And first of all, you watch it completely, try to understand. After that, if you want, you write. ठीक है? You should write, you must write. But first of all, you try to understand. It's better. And it will give you a pleasure to read more, to learn more, to watch the videos more. Thank you.